All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. First of all, let's revise what we have done in last lecture. Within last lecture, we have seen topic 1.4, that is block diagram and functional units of computer. Within that topic, we have seen that there are total 5 units, that is input unit, storage unit, output unit, arithmetic and logic unit, control unit, right? These were the 5 units which are to be considered within the functional units of computer. And if we combine control unit and arithmetic and logic unit, then it is known as central processing unit. And we have seen each and every units in detail within last lecture. Within today's lecture, we will start with the topic that is 1.3 types of computer. This topic is also known as classification of computer. Again, I repeat, you need to consider this is topic 1.3, that is types of computer, and this topic is also known as classification of computer. So either in exam it is asked as types of computer or it is asked as classification of the computer. The content will remain the same, right? Now what is the scenario? As we know कि computers बहुत सारे different sizes में available है, types में available है, right? बहुत सारे ऐसे computers है जो हमारे हाथ में fit हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे computers है जो हमारे lab में fit हो जाते हैं, right? बहुत सारे ऐसे भी कंप्यूटर्स है जो सिंगल यूजर कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स है जो मल्टी यूजर कंप्यूटर है, राइट? बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स भी है विद इन विच इट डिपेंड्स कि वो कौन से टाइप के डेटा प्रोसेस करते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स कि आपको किस हिसाब से क्लासिफाई करना है. सो इट डिपेंड्स कि आपको किस हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर्स को डिवाइड करने हैं, right? So within this topic, we will divide our computer into 3 main categories. Again, I repeat, within this topic, हम हमारे कंप्यूटर्स को 3 मेन टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज पर्पस, सेकंड इज डेटा हैंडलिंग एंड थर्ड इज फंक्शनैलिटी, right? Again, I repeat, computers are classified into 3 main categories. First is purpose, second is data handling and third is functionality, right? अब हम पर्पस के अंदर देखते हैं. इफ वी डिवाइड कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस मतलब हम किस वजह से कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, राइट? According to the purpose, computers are divided into two categories, that is general purpose computer and specific purpose computer or special purpose computer. If we divide computer in terms of data handling, मतलब वो कौन से टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है, then it is divided into 3 types, that is analog computer, digital computer and hybrid computer. अगेन आई रिपीट, अगर हम कंप्यूटर्स को वो कौन से डेटा हैंडल करता है उसके हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. एंड द लास्ट मेन कैटेगरी इज फंक्शनैलिटी. एंड अगर हम हमारे कंप्यूटर्स को फंक्शनैलिटी के टर्म्स में डिवाइड करें, मतलब वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है उसके हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करें, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. And further, microcomputers are divided into 3 types, that is desktop computer, laptop computer and handheld computer. Again, microcomputers are divided into 3 types, that is desktop computer, laptop computer and handheld computer, right? So this way we can classify computers into different categories. So there are 3 main categories, that is purpose, data handling and functionality. अब हम सारे कंप्यूटर्स के टाइप्स डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जनरल पर्पस कंप्यूटर, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट मेन कैटेगरी, दैट इज पर्पस. उसमें से फर्स्ट टाइप है, दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर. नाउ व्हाट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर? जैसा नाम है वैसे ही हमें उसको कंसिडर करना है. इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस,
मतलब अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो कंप्यूटर है, स्कूल्स में जो कंप्यूटर है, कॉलेजेस में जो कंप्यूटर है, राइट, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स आके अपना काम भी करते हैं, फैकल्टीज भी अपना काम करते हैं, राइट। आपको सॉन्ग्स प्ले करने हैं, आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, आपको गेम खेलनी है, गेम खेल सकते हो, अगर फैकल्टीज को प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इट मीन्स जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मैनी डिफरेंट टास्क। बहुत सारे टास्क करने में वो काम लगता है और उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है। अगेन आई रिपीट, और जनरल पर्पस कंप्यूटर के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है एंड इट इज यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। वो बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होते हैं, फ्रॉम साइंटिफिक टू बिजनेस। हम बिजनेस में भी जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, राइट। इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स कि हमें कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट जनरल पर्पस कंप्यूटर हम बिजनेस में या फिर साइंटिफिक मैनर में भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट दे आर वेरी मच वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब वो एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, दैट इज वर्सेटाइलिटी। उसके अंदर क्या था कि अगर मैं एक मोमेंट पे मैं कंप्यूटर में वर्ड में टाइप कर रही हूँ, सेम मोमेंट में सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला है, देन दीज आर द डिफरेंट टास्क विच कैन बी हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर इन अ साइमल्टेनियस मैनर। बट ऑब्वियसली अगर हम उसको कंपेयर करें, राइट, विथ अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम कह सकते हैं कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की उतनी स्पीड नहीं होती है, राइट, जितनी दूसरे सारे कंप्यूटर्स की होती है, जैसे स्पेशल कंप्यूटर्स की होती है, right? So this is the thing, that what is general purpose computer. In short, we can say कि general purpose computers are used to perform wide range of tasks. बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है और बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करने के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, राइट। Now the second type is special purpose computer, right? As the name says, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मतलब वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए काम लगेगा, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए काम लगेगा, राइट। उसके अंदर ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी जो उसे जो बोला गया है वही टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। अगर मुझे उसके पास दूसरे एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करवाना है तो मुझे उसकी सर्किट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर ऑब्वियसली दे आर वेरी फास्ट, वो हमें रिजल्ट क्विकर मैनर में देगा, वो बहुत एफिशिएंट होते हैं। क्यों? ऑब्वियसली अगर हम उसको एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए देंगे तो उसको वो रिजल्ट हमें क्विकर मैनर में देगा, एफिशिएंट मैनर में देगा। बट द थिंग इज दैट वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए वो डिजाइन हुआ है वही टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। That's why we can say कि special purpose computer lacks versatility. उसके अंदर versatility नहीं होती है because वो सिर्फ specific task perform करने के लिए ही use होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, स्पेस शटल में कंप्यूटर का यूज करते हैं, ऑब्वियसली जो कंप्यूटर से हम सैटेलाइट ट्रैक करते हैं, स्पेस शटल को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर हम म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, मूवीज प्ले नहीं कर सकते, गेम नहीं खेल सकते, अदरवाइज वो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इतना नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि जहाँ क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, क्रिटिकल एप्लीकेशंस को हैंडल करना होता है, राइट, वहां पे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज करते हैं बिकॉज दे आर डिजाइन फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओनली। अगर मुझे सैटेलाइट को ट्रैक करना है, वो कंप्यूटर उसी के लिए मैं यूज करती हूँ, तो उसके अंदर वही एप्लीकेशंस होंगी जो सैटेलाइट को ट्रैक कर सकती है, वो डिजाइन ही उस हिसाब से हुआ होगा कि वो सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में याद रखना है, that it can handle a specific problem, it can handle a specific task, and it is specifically designed for that particular thing. और अगर आपको उसके पास दूसरा कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, दूसरी कोई एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करवाना है, तो आपको उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसकी सर्किट को रीडिजाइन करना पड़ेगा,
And if we talk about the difference between general purpose computer and special purpose computer, तो general purpose computer में versatility है, right? Whereas special purpose computer हमें result quicker manner में देता है और efficient manner में देता है, right? So students, this is all about the category of the computer which is bifurcated in terms of purpose, that is general purpose computer and special purpose computer, right? Now let's move on to the second category, that is data handling. और data handling में first type of computer is analog computer, right? Again I repeat, this is the second category of the computers which is bifurcated depending on the type of data, वो कौन से data handle करता है उसके हिसाब से उसको divide किया गया है. And from that the first type of computer is analog computer, right? Now what is analog computer? ऐसे computers के जो analog data को process कर सकता है, that type of computer is known as analog computer. Again I repeat, ऐसे computers के जो analog data को process कर सकते हैं वैसे computers को हम analog computers कहते हैं. Now what is analog data? Analog data मतलब ऐसे data जो continuous data है, जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते डेटा है, राइट? डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. ऐसे डेटा को हम एनालॉग डेटा कहते हैं. अगेन आई रिपीट, ऐसे डेटा की जो कंटिन्यूअस डेटा है बट दे ऑल्सो चेंज कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, वैसे डेटा को हम एनालॉग डेटा कहते हैं, राइट? ये एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है? ऐसी जगह पे हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप स्पीड की बात करो, आप व्हीकल चला रहे हो, राइट? और आप स्पीड की बात करते हो, देन ऑब्वियसली स्पीड डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेटर. आप कितना एक्सेलरेट करते हो उसके हिसाब से आपकी व्हीकल की स्पीड होगी, राइट? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट? कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा होता है, राइट? अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, देन टू वो फ्लक्चुएट होता रहता है. इट इज नॉट ऑल द टाइम कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेम होता है, राइट? सो अगर मुझे ऐसे डेटा प्रोसेस करने हैं जो कंटिन्यूअस डेटा है मगर उसके साथ साथ वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो मैं एनालॉग कंप्यूटर का यूज कर सकती हूँ, राइट? ये एनालॉग कंप्यूटर डेटा कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, उसको डेटा कहाँ से इनपुट मिलेगा? ऑब्वियसली जो मेजरिंग डिवाइस होगा, मतलब जो स्पीड मेजर कर सकता है, जो टेम्परेचर मेजर कर सकता है, जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकता है, ऐसे जो डिवाइसेस होंगे वहां से एनालॉग कंप्यूटर को डेटा मिलेंगे, राइट? और उसके साथ वो कैसे होंगे? वो डायरेक्ट वैल्यूज होगी जो हम एनालॉग कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट देंगे. Means we can say analog computers can measure the continuous changes in physical quantity, right? And generally render output as a reading on a dial or a scale. In the sense, हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर जो चेंज हुए डेटा होते हैं वो हम उसे इनपुट देंगे और उसके हिसाब से वो हमने उसको जो कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो कैलकुलेट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके वो दे सकता है, राइट? सो दिस इज हाउ के एनालॉग कंप्यूटर्स हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, राइट, स्पीडोमीटर है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर है. अगर आप बीमार हो, आपको फीवर है, राइट, तो आप थर्मोमीटर का यूज करते हो जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है, जो सिल्वर कलर का लिक्विड होता है, दैट इज मर्क्यूरी, राइट? मतलब ऐसे जो सारे डिवाइसेस होती है, ऐसे जो सारे डिवाइसेस होते हैं, राइट, उसके अंदर से अगर हम इनपुट लेते हैं, इफ दिस डिवाइसेस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट इज कनेक्टेड विथ अवर एनालॉग कंप्यूटर,
तो ये डिवाइसेस में से डेटा इनपुट होंगे एनालॉग कंप्यूटर के अंदर, और एनालॉग कंप्यूटर हमने जो उसको फंक्शंस करने के लिए बोला है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बोला है, जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए बोला है, वो कैलकुलेशंस करके हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा, राइट। हम क्यों इसे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कहते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इट डील्स विद द क्वांटिटीज की जो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, और अगर हम कंप्यूटर को ऐसी वैल्यूज दे कि विद इन सेकेंड्स बहुत बार चेंज होती है, तो ऑब्वियसली वो हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि एनालॉग कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी कम होती है, accuracy is less, but along with that अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर हम ग्राफिकल रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से जनरेट कर सकते हैं, मतलब ग्राफ के टर्म्स में हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो सकता है, राइट। And the main feature of analog computer is it works in a very fast manner because वो parallel mode में work करता है। Now what is parallel mode? एक तरफ से इनपुट आता है, एट द सेम मोमेंट वो इनपुट को प्रोसेस करता है और दूसरी तरफ वो आउटपुट देता है, मतलब वो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग वो सारी चीजें साइमल्टेनियसली करता है, एक साथ करता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही वो इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद वो आउटपुट देता है। नो, वो पैरेलली सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, पैरेलली सारे कैलकुलेशंस करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से द मेन फीचर ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज इट वर्क्स इन अ फास्टर मैनर, बिकॉज वो पैरेलली सारे कैलकुलेशंस वो कर सकता है, पैरेलली सारे ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एनालॉग कंप्यूटर। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो एनालॉग डेटा के ऊपर वर्क करता है, मतलब ऐसे डेटा की जो कंटिन्यूअस डेटा होते हैं, डिस्क्रीट नहीं होते, वो एनालॉग डेटा होते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस डेटा होते हैं और जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। ऐसे डेटा को अगर मुझे प्रोसेस करना है तो मैं एनालॉग कंप्यूटर का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो पेट्रोल पंप पे आप अगर पेट्रोल फिल करवाने जाते हो अपने व्हीकल में, राइट, तो व्हाट इज द थिंग, सो अगर कोई पर्सन कहता है कि मुझे 100 रुपीज का पेट्रोल चाहिए, तो वो मशीन में 100 रुपीज इनपुट करता है और उसके हिसाब से कैलकुलेट होके पेट्रोल मिलता है। अगर वो बोलता है कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो वो 1 लीटर वो जो कंप्यूटर होता है पेट्रोल पंप के ऊपर वो इनपुट होता है और उसके हिसाब से पेट्रोल मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, कि कहाँ पे हम कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे पेट्रोल आता है वो कैलकुलेट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देता है कि कितना पेट्रोल उसने हमारी टैंक के अंदर फिल किया है, right? So this is the best example of analog computer. Now the second type of computer within the second category, that is data handling, is digital computer. Now what is digital computer? Obviously the digital computer will operate on the data which is in the form of digits. Again I repeat, ऐसे computers जो ऐसी information के ऊपर operate करता है जो digital form में है, राइट, एंड ऑब्वियसली वो बहुत सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए डिजाइन हुआ होता है और वो हाई स्पीड के मतलब वो हाई स्पीड में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट वी कैन से कि जो कंप्यूटर्स डिजिट्स के ऊपर वर्क करते हैं, मोर प्रिसाइज बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करते हैं, और वो ऐसे डेटा इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो आउटपुट हमें जनरेट करके देता है, right? So this type of computers are known as digital computers. जैसे हमारे computers जो हम घर पे कॉलेज पे हम जो यूज करते हैं, this computers are known as digital computers because वो digits के ऊपर वर्क करता है, right? वो binary numbers के ऊपर वर्क करता है. That's why we can say that this type of computers are known as digital
कंप्यूटर्स कि जो बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क कर सकता है, राइट। अनदर थिंग इज ऑब्वियसली अगर मुझे डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर एनालॉग डेटा को प्रोसेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एनालॉग डेटा को मुझे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल क्वांटिटीज में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं डिजिटल कंप्यूटर्स में एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर सकती हूँ, राइट। और आउटपुट किस में मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। और अगर हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, जो डिजिटल आउटपुट है उसे फिर से एनालॉग क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हमें एनालॉग डेटा एज एन आउटपुट मिल सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, नो डाउट डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर हम डिजिटल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसी के ऊपर हम प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में भी बताया था कि हम कंप्यूटर को दो कैपिटल ए स्मॉल ए इनपुट देंगे, लेकिन वो कंप्यूटर उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस विच इज अ डिजिट, राइट। सो डिजिटल कंप्यूटर्स हमेशा बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करता है, दैट इज 1 एंड 0 के ऊपर वर्क करता है। लेकिन अगर हमें डिजिटल कंप्यूटर के अंदर एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करना है, एनालॉग डेटा को प्रोसेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनालॉग डेटा को पहले हमें डिजिटल क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हम डिजिटल कंप्यूटर में उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और वो हम आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में ही देंगे। लेकिन अगर मुझे एनालॉग फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन जो डिजिटल आउटपुट है उसे मुझे एनालॉग क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ओनली आई विल एबल टू डिस्प्ले द आउटपुट इन एनालॉग फॉर्म। उसके बाद ही मैं एनालॉग फॉर्म में आउटपुट डिस्प्ले कर सकती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डिजिटल कंप्यूटर इज वो एक्यूरेट मैनर में रिजल्ट देता है, वो फास्टर मैनर में रिजल्ट दे सकता है, राइट, जो एनालॉग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगेन आई रिपीट, एनालॉग में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि उसके अंदर हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, बट इन डिजिटल कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, राइट। अगेन आई रिपीट, डिजिटल कंप्यूटर में आउटपुट डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हमें एनालॉग फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म में जो आउटपुट है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हम एनालॉग में आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डिजिटल कंप्यूटर्स में ऑब्वियसली डिजिटल फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, राइट। So students, this is all about digital computer. Now the third type of computer within second category, that is data handling, is hybrid computer. Again I repeat, the third type of computer within data handling category is hybrid computer. Now what is hybrid computer? As the name says, वो hybrid manner में बनाया गया है. Now what is in hybrid manner, right? It combines the feature of both the type of computer, that is analog computer and digital computer. Again I repeat, hybrid computers के अंदर दोनों computers के feature combine करके बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग कंप्यूटर जैसे फास्टर मैनर में वर्क करता है, राइट, वो उसके अंदर से वो फीचर लिया है, और डिजिटल कंप्यूटर का क्या कौन सा फीचर लिया है, दैट इज एक्यूरेसी, राइट। अगेन आई रिपीट, वो एनालॉग कंप्यूटर जैसा फास्टर है, राइट, और डिजिटल कंप्यूटर की तरह उसके पास मेमोरी और एक्यूरेसी है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि हाइब्रिड कंप्यूटर के पास कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो फास्टर मैनर में वर्क करेगा, उसके पास बहुत सारी मेमोरी होगी, और वो एक्यूरेसी के साथ हमें आउटपुट देगा, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, बिकॉज उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के जो अच्छे अच्छे फीचर्स है उसको कंबाइन करके बनाया गया है। Another side, we can also say कि hybrid computers can process both the kind of data. वो दोनों टाइप के डेटा प्रोसेस कर सकता है, कंटिन्यूअस डेटा भी प्रोसेस कर सकता है और डिस्क्रीट डेटा भी प्रोसेस कर सकता है,
राइट, मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है ऐसे डेटा भी वो प्रोसेस कर सकता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर में क्या था कि वो कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेस कर सकता है, राइट। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर ऑब्वियसली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, दैट्स व्हाई वी कैन से कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स दोनों टाइप के डेटा प्रोसेस कर सकता है, दैट इज कंटिन्यूअस डेटा एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा, राइट। नाउ व्हाट डज इट एक्सेप्ट्स, वो एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। So we can say it is widely used in specialized applications कि जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों टाइप के डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। अगेन आई रिपीट, हाइब्रिड कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज होते हैं कि जहाँ पे ऐसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस होती है कि जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हमें हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में याद रखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, साइंटिफिक एप्लीकेशंस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, राइट, जहाँ पे हमें इंडस्ट्री के अंदर तो आपको भी पता है कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर जो कलर्स का मिक्सचर होता है, राइट, वो कलर्स का मिक्सचर ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि मुझे पर्पल कलर बनाना है तो उसमें पिंक कलर का इतना प्रपोर्शन होगा, ब्लू कलर का इतना प्रपोर्शन होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट इतना बनना चाहिए। तो जो प्रपोर्शन होता है ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन एनालॉग डेटा, और जो एग्जैक्ट आउटकम मिलता है दैट इज द शेड ऑफ द पर्पल कलर, राइट, वो अलग होता है, राइट। सो दिस इज कि आपको याद रखना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, hybrid computers can process both the kind of data, that is continuous data and discrete data. continuous data मतलब उसको कंटिन्यूअसली इनपुट मिलता है, जैसे जैसे डेटा चेंजेस होते जाते हैं उसको कंटिन्यूअस इनपुट मिलता है। और डिस्क्रीट डेटा मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, मैं एक इनपुट देती हूँ, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है और मुझे आउटपुट जनरेट करके मिलता है। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा के अंदर क्या होगा, इनपुट भी एक साथ होगा, प्रोसेसिंग भी एक साथ होगा और आउटपुट भी मुझे एक साथ ही करना पड़ेगा, बिकॉज कंटिन्यूअस डेटा ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं, राइट। सो दिस इज कंटिन्यूअस डेटा एंड discrete data. And आपको याद रखना है कि hybrid computer is the combination of analog computer and digital computer, right? So this is the second category, that is data handling, जो यहाँ पे complete होती है, जिसके अंदर आपको 3 different types के computers को consider करना है, that is analog computer, digital computer and hybrid computer. Now the third category of computer is which depends on the functionality. वो कौन कौन सी फंक्शनलिटी वो कर सकता है और उसके हिसाब से हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है। And within that first type of computer is microcomputer, right? Now what is microcomputer? Personal computers are known as microcomputers. जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हमारे घर पे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स, राइट। उसे हम माइक्रो कंप्यूटर्स कह सकते हैं, जो छोटे होते हैं और लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कि हम उसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आपके घर पे जो कंप्यूटर है, स्कूल में जो कंप्यूटर है, कॉलेज में जो कंप्यूटर है, उसके ऊपर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, राइट। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होगी, ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर होगा जिसका यूज करके हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मेमोरी होगी, स्टोरेज होगा, इनपुट यूनिट होगा, आउटपुट यूनिट होगा, राइट। मतलब जो भी हमने फंक्शनल यूनिट्स पढ़े थे वो सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल होगी, राइट। एंड दे आर मोर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो, असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट डाउनलोड करना है, ऑफिस वर्क के लिए आप उसे यूज कर सकते हो, म्यूजिक प्ले करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट। मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सनल यूज आप पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हो, राइट। नाउ
Within microcomputer, first type of computer is desktop computer. जैसे आप इमेज में देख सकते हो, उसके अंदर कीबोर्ड होगा, माउस होगा, कैबिनेट होगा, डिस्प्ले स्क्रीन होगी, दैट इज मॉनिटर होगा, और कैबिनेट के अंदर हार्ड डिस्क होगी, मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, वो सारी चीजें ये कैबिनेट के अंदर प्रेजेंट होगी. सो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर जो आपके टेबल के ऊपर फिट होता है, जो आपके डेस्क के ऊपर फिट होता है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर नोन एज desktop computers, right? So we can say computers that are designed to fit comfortably on the top of the desk. आपके डेस्क के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर फिट हुए हो जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, जो आपके टेबल के ऊपर फिट होते हैं, जो आपके डेस्क के ऊपर फिट होते हैं, वैसे कंप्यूटर्स को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, right? And obviously they are intended for standalone use, right? Standalone use मतलब वो एक ही यूजर उसे यूज करेगा. स्टैंड अलोन मतलब आप उसे एक जगह पे रखोगे और उसके ऊपर जो पर्सन बैठेगा उसके हिसाब से वो उसे यूज कर सकता है, राइट? जैसे हमने यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर में देखा कि मॉनिटर है, दैट इज डिस्प्ले यूनिट है, राइट? कीबोर्ड है, माउस है, जिसका यूज करके हम इनपुट कर ले सकते हैं. इसके अंदर कैबिनेट के अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क होगी, राइट? सो दीज आर द मैनी डिफरेंट थिंग्स कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अवेलेबल है. एंड मोर प्रिसाइज, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वो इतने कॉस्टली नहीं होते हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल यूज के लिए या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, राइट? और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि कौन कौन सी कंपनीज बनाती है, तो एप्पल बनाती है, डेल बनाती है, IBM बनाती है, HP कंपनी है, ये सारी स्टैंडर्ड कंपनीज है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बनाती है, राइट? और ऑब्वियसली ये तो आपने ऑलरेडी ऐसे कंप्यूटर्स तो देखे हुए होंगे, राइट? आपके घर पे भी होगा, आपके अपने स्कूल पे भी होंगे, राइट? जहाँ पे आपने वर्क किया होगा, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेस्कटॉप कंप्यूटर. स्टूडेंट, माइक्रो कंप्यूटर इज अ ब्रॉड कैटेगरी जिसके अंदर देर इज वन टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. Again, I repeat, microcomputer is a broad category of computer, broad type of computer के जो functionality के head में आता है, and desktop computer is one type of microcomputer, right? Now, another type of microcomputer is laptop, or it is also known as notebook. Again, I repeat, another type of microcomputer is laptop, or you can also say it as a notebook. हम notebook computer इसे इसलिए कहते हैं because it is like a notebook. आप उसे open करते हो तो वो notebook की तरह वो open हो सकता है. That's why it is known as laptop, because वो आपके लैप में फिट हो जाता है. आप अपने लेग्स फोल्ड करोगे और उसके ऊपर अगर आप ये लैपटॉप रखोगे, ये मशीन रखोगे, तो आपके लैप में फिट हो जाएगा. That's why it is known as laptop computer, और it is also known as notebook computer because वो नोटबुक की तरह दिखता है और वो नोटबुक की तरह ओपन होता है, right? Now this type of computers are portable computers. Portable computers मतलब आप उसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, right? ट्रैवलिंग के वक्त आप उसे कैरी कर सकते हो, because वो लाइट वेट कंप्यूटर्स होते हैं, इतने हैवी कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, इसलिए आप ट्रैवलिंग के वक्त कहीं पर भी कोई भी टाइम पे आप उसे कैरी कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो. That's why they are known as portable computers. Portable मतलब आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर ले जा सकते हो, राइट? एंड एज आई हैव सेड कि लैपटॉप कंप्यूटर्स नोटबुक की तरह दिखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज नोटबुक्स, राइट? उसके अंदर वो सारे फीचर्स होते हैं जो हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर डिस्कस किए, राइट? उसके अंदर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ALU, CU दैट इज कंट्रोल यूनिट, सारे फीचर्स वो छोटे से मशीन के अंदर फिट हुए होते हैं, राइट? एंड द वन मेन बेनिफिट ऑफ दिस लैपटॉप इज उसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है.
राइट, ताकि अगर उसे थोड़े टाइम के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं मिले तो भी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर ट्रैवलिंग। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं उस वक्त अगर हमें कोई काम करना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज लैपटॉप कंप्यूटर्स बिकॉज उसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है, राइट, ताकि अगर बैटरी हमने चार्ज की है तो उसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, और जब तक वो बैटरी होती है तब तक हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट इफ वी कंपेयर लैपटॉप विथ डेस्कटॉप कंप्यूटर देन ऑब्वियसली laptop are more expensive than desktop computers. Means we can say laptop are more costly than desktop computers. राइट, सो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स कि हमें हमारे वर्क के हिसाब से, हमें हमारे फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें या लैपटॉप चाहिए या फिर डेस्कटॉप चाहिए। अगर मुझे एक ही जगह पे रख के काम करना है देन डेस्कटॉप इज द बेस्ट ऑप्शन, और अगर मुझे मेरी ज़रूरत ऐसी है कि ट्रैवलिंग के वक्त भी मुझे वर्क करना है देन आई हैव टू गो फॉर लैपटॉप कंप्यूटर, राइट। Alright. Now another type of computer are handheld computer. Handheld computers means जो आपके हाथ में फिट हो जाए, ऐसे computers को हम handheld computers कहते हैं। Again I repeat, ऐसे computers, ऐसे machines या फिर ऐसे devices जो आपके हाथ में fit होते हैं, that type of computers are known as handheld computers. It is also within the category that is microcomputer. Again, I repeat, it is also to be considered within the category that is microcomputer. Obviously, handheld computers are very small computer के जो आपके एक ही हाथ में फिट हो जाते हैं, ताकि आप इसे भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हो, राइट। बट द थिंग इज दैट कि इसके अंदर जो भी इनपुट होता है, दैट इज कीबोर्ड होता है या फिर स्क्रीन होता है, वो बहुत छोटा होता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस कि अगर आप लैपटॉप की बात करो तो उसके अंदर स्क्रीन, इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और वो सारी चीजें बहुत बड़ी होती है, मीन्स इट इज मोर कन्वीनियंट, राइट। लेकिन अगर आपको ऐसी मतलब लिमिटेड टास्क परफॉर्म करने हैं और आपको फ्रिक्वेंटली आपके मशीन को, आपके डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर कैरी करना है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर handheld computers. And the examples of handheld computers are PDAs, that is personal digital assistant, right? Palm tops, tablets, and smartphones. Nowadays, smartphones are also considered as a portable computer because आप अपने smartphones में भी बहुत सारे task perform कर सकते हो, right? Now, if we talk about palm tops, as the name says, it is a palm top. मतलब आपके हाथ की हथेली में वो device fit हो जाता है. That's why this type of computers are known as palm tops. आपकी हाथ की हथेली का meaning होता है palm. राइट, दैट्स वाई इट इज नोन एज पाम टॉप्स, जो बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। बट द थिंग इज दैट ऑब्वियसली वो, अगर वो छोटे कंप्यूटर्स है तो उसके अंदर फंक्शंस भी लिमिटेड होंगे, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर वो छोटे कंप्यूटर्स है तो उसके अंदर फंक्शंस भी लिमिटेड होंगे। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको फोन बुक्स, कॉन्टेक्ट्स मैनेज करना है, कैलेंडर मैनेज करना है, राइट, तो आप ये पाम टॉप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। अनदर थिंग इज दैट पाम टॉप कंप्यूटर के अंदर वो एक स्टाइलस होगा, एक स्टिक जैसा होगा, एक पेन जैसा होगा, राइट, जिसका यूज करके आप उसके अंदर इनपुट दे सकते हो। उसके अंदर एग्जैक्ट कीबोर्ड नहीं होगा। आप ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे आप ये जो गोल्डन कलर का देखते हो, राइट, दिस गोल्डन कलर इज द स्टिक, कि जिसको आप निकाल के ये जो पाम टॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर वो पेन की तरह आप उसे वर्क करवा सकते हो, पेन की तरह आप उसे पॉइंट करके उसके पास वर्क करवा सकते हो, राइट। सो वी कैन से इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, ये जो पाम टॉप है या फिर हम पीडीए देखेंगे, पीडीए है, राइट, जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स है उसके अंदर ऐसे पेन होगी, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टाइलस, कि जिसका यूज करके हम स्क्रीन के ऊपर से वो इनपुट दे सकते हैं, राइट। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एज ये पाम टॉप की साइज छोटी होती है इसलिए इसके अंदर डिस्क ड्राइव मतलब एक्सप्लिसिट हार्ड डिस्क नहीं होती, राइट। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर एक्सप्लिसिट हार्ड डिस्क नहीं होती, मतलब वो लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकता है, राइट। सो दिस इज अबाउट पाम टॉप्स। नाउ व्हाट इज पीडीए? PDA is known as Personal Digital Assistant. Full form of PDA is Personal Digital
असिस्टेंट। अगेन इट इज ऑल्सो हैंड हेल्ड डिवाइस जो आपके हाथ में फिट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेलीफोन करने के लिए या फिर नेटवर्किंग करने के लिए या फिर छोटा छोटा कैलकुलेशंस करने के लिए हम ये पीडीए को यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे एज अ सेल फोन या फिर अगर मुझे फैक्स सेंड करना है या फिर मुझे अपना पर्सनल शेड्यूल ऑर्गेनाइज करना है, मुझे रिमाइंडर्स चाहिए, कैलेंडर मेंटेन करना है, ऐसी सारी ऐसे सारे टास्क के अंदर ऐसे सारे फंक्शंस अगर मुझे करने हैं तो मैं पीडीए का यूज कर सकती हूँ, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे मैंने पामटॉप में बताया, पीडीए इज ऑल्सो पोर्टेबल कंप्यूटर, लेकिन उसके अंदर भी इट इज नोन एज पेन बेस्ड, राइट। उसके अंदर भी पेन टाइप एक डिवाइस होगा जिसे हम स्टाइलस कहेंगे, जिसका यूज करके हम इनपुट दे सकते हैं। इसके पास कीबोर्ड जैसा नहीं होगा, बड़ा वाला कीबोर्ड नहीं होगा जिसका यूज करके हम इनपुट देंगे, राइट। इसके अंदर भी वो पेन जैसा स्टाइलस होगा जिसका यूज करके हम इनपुट दे सकते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर हम पेन जैसा यूज करेंगे तो इसके अंदर हम हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन फीचर भी होगा, बिकॉज अगर आप उसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखोगे तो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द डिवाइस, राइट। और वो डिवाइस आइडेंटिफाइड करेगा कैसे, आपकी आप जो लिखोगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द हैंड राइटिंग ऑफ योर्स, राइट, वो उसे रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। एंड मैनी पीडीएज ऐसे अवेलेबल है जो आपका वॉइस इनपुट भी कंसीडर करता है। अगर आप बोलोगे कि ओपन फोन बुक, राइट, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली फोन बुक ओपन करके आपको दे देगा, राइट। मतलब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीडीएस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के जो आपको कंसीडर करने हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टास्क, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनलिटी कि आपको किस लिए उसे यूज करना है, राइट। एंड द फील्ड दैट इज पीडीए, उसके अंदर द पायोनियर मीन्स द कंपनी की जिसने पीडीए का बेस डाला, दैट इज एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंपनी ने पीडीए का बेस डाला था, राइट। नाउ एज यू नो, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, राइट। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो ऊपर के जो 3 डिवाइसेस है दे आर टैबलेट्स, और नीचे जो मैंने 2 फोन्स रखे हैं दे आर नोन एज स्मार्टफोन्स। एंड ऑब्वियसली यू आर वेरी यूज्ड टू विथ बोथ द टर्म, दैट इज टैबलेट एंड smartphone, right? As we know technology is advancing day by day, right? So there are pocket friendly devices, because tablets and smartphones are the kind of devices जो आपके पॉकेट के अंदर फिट हो जाता है, राइट। सो वी कैन से कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, हमारे पास नए नए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस आते हैं, राइट। एंड द लेटेस्ट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर पॉकेट फ्रेंडली डिवाइसेस। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस कि जो आपके पॉकेट के अंदर फिट हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैबलेट की बात करें, देन टैबलेट इज ऑल्सो अ मोबाइल डिवाइस, मोबाइल काइंड ऑफ डिवाइस, राइट, कि जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, टच स्क्रीन होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए सर्किटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, वो बहुत थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से अपने पॉकेट के अंदर उसे फिट कर सके, राइट। But the thing is that, right, there are some things जैसे इनपुट और आउटपुट। ऑब्वियसली टैबलेट के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती है जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर होती है, मतलब आउटपुट की जो स्पेस होती है वो छोटी होती है। मैं इनपुट की बात करूँ तो इनपुट के अंदर भी देयर विल बी द सेम थिंग विच वी नीड टू कंसीडर, कि उसके अंदर भी वो टच स्क्रीन की तरह हमें इनपुट देना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली हमारे पास कीबोर्ड या फिर माउस नहीं होगा जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप में होता है, राइट। सो दिस इज द थिंग, ऑब्वियसली जैसे जैसे चीजें छोटी होती जाएगी उसके अंदर भी जो भी फंक्शनैलिटी होगी, जो भी इनपुट आउटपुट एबिलिटीज होगी वो भी चेंज होती जाएगी, राइट। ऑब्वियसली जैसे जैसे छोटी होती जाएगी उसके ऊपर स्क्रीन, कीबोर्ड, वो सारी चीजें भी छोटी होती जाएगी, राइट। सो दिस वी नीड टू कंसीडर अबाउट द टैबलेट। नो डाउट उसके अंदर सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है कि जो नॉर्मल डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल है, बट द मेन थिंग इज वो सारी चीजें कैसी होती है, छोटी होती है। इफ वी टॉक अबाउट द टैबलेट्स, राइट, तो वो 7 इंच होते हैं,
राइट, 7 ईच साइज होती है, बट ये साइज कैसी होती है, हमें डायगोनल मेजर करना है। डायगोनल मतलब ऐसे वर्टिकल मैनर में उसे मेजर नहीं करना है, डायगोनल मतलब ऐसे स्लांट मैनर में स्क्रीन की साइज मेजर होती है। आप स्मार्टफोन भी लेते हो या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन भी लेते हो या फिर टैबलेट लेते हो, उसकी जो स्क्रीन साइज होती है वो ऐसे वर्टिकल मैनर या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल मैनर में मैनेज नहीं होती, मेजर नहीं होती। इट इज मेजर्ड इन डायगोनल मैनर, मतलब ऐसे स्लांट मैनर में मेजर होती है, दैट इज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, ऐसे मेजर होती है, राइट। ऑब्वियसली स्मार्टफोन से टैबलेट की साइज बड़ी होती है, राइट, बिकॉज स्मार्टफोन्स आर स्टिल स्मॉलर देन टैबलेट, राइट। सो दिस इज द थिंग। लेकिन कोई टैबलेट ऐसे होते हैं कि जो सेल्यूलर नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, कोई टैबलेट ऐसे होते हैं जो सेल्यूलर नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन, दैट इज अकॉर्डिंग टू विच दैट पर्टिकुलर टैबलेट हैज बीन डिजाइन, राइट। अनदर थिंग इज दैट अगर हम टच स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वो स्टाइलस आता है, पेन जैसे डिवाइस आता है, राइट, कि जिसका यूज करके हम टच स्क्रीन के ऊपर टैबलेट के अंदर इनपुट दे सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज आवर फिंगर्स, जैसे आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर यूज करते हो, राइट, अपने फिंगर्स का यूज करके स्क्रीन के ऊपर जो कीबोर्ड आता है उसका फिंगर्स का यूज करके आप टाइप करते हो, right? So the same functionality is to be carried out within tablet also, right? Means we can say कि mouse, कीबोर्ड एक्सप्लिसिट ऐसे कोई भी डिवाइस नहीं होते हैं टैबलेट के साथ, राइट। ओनली द थिंग दैट इज दैट रेक्टेंगुलर डिवाइस की जिसके अंदर वो सारी चीजें फिट होती है। एंड ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो पोर्टेबल कंप्यूटर। अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि वो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, मतलब आपके पॉकेट के अंदर फिट हो जाते हैं, देन ऑब्वियसली दिस tablet is also considered within portable computers, right, ताकि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर कैरी कर सको, right। now there are two different types of tablet, that is slate and booklet, मतलब this is just an example, right, कि जिसके अंदर हम tablet को categorize कर सकते हैं। All right, now another is smartphones. Now I don't think कि मुझे स्मार्टफोन्स के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द स्मार्टफोन काइंड ऑफ अ डिवाइस, राइट, जो iOS के ऊपर उसके अंदर आइदर ऑफ टू ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, या फिर iOS होता है या फिर एंड्रॉयड होती है, राइट। अगर वो एप्पल कंपनी का है तो उसके अंदर iOS होगा, अगर वो दूसरी कंपनी का है तो उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, right। And obviously as we know कि Android operating system is based on Linux operating system, right, मतलब Linux operating system की तरह वो वर्क करता है। एंड वी नो कि स्मार्टफोन्स अब तो बहुत फास्टर मैनर में वर्क करते हैं, राइट, और उसके अंदर डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, राइट। अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो 256 GB तक भी हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी कार्ड कि जो हमने स्मार्टफोन के अंदर फिट किया है। बट वी कैन से कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, राइट, स्मार्टफोन्स भी फास्टर मैनर के अंदर वर्क होते हैं, उसके अंदर डेटा कैपेसिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, राइट। सो दिस टू डिवाइस दैट इज टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स, ऑब्वियसली उसके अंदर लिमिटेशंस है कि वो उसका प्रोसेसिंग पावर इतना नहीं है जितना कंप्यूटर का है, बिकॉज कंप्यूटर कैन प्रोसेस एनी काइंड ऑफ डेटा, राइट, उतना प्रोसेसिंग पावर उतना नहीं है। अगर मैं मेमोरी भी कंपेयर करूँ तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के अंदर नो डाउट 256 GB हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करें देन विद इन दिस टू टाइप ऑफ कंप्यूटर हम टीबी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, right। Another thing is screen size। obviously screen size भी डेस्कटॉप और लैपटॉप की बड़ी होती है, whereas टैबलेट और स्मार्टफोन की छोटी होती है, राइट। अनदर थिंग इज कि हम अगर इनपुट मेथड्स की बात करें तो मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो मेरे पास न्यूमेरिक कीपैड जिसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स होते हैं वो अलग मिलता है, राइट। क्वालिटी कीबोर्ड होता है, क्वालिटी कीबोर्ड मतलब आप अगर वो जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उसके जो फर्स्ट 5 कीज अगर आप देखोगे ना देन दे आर QWERTY। अगेन आई रिपीट, जो अल्फाबेट के जो कीज होते हैं उसके ऊपर जो फर्स्ट 5 कीज होती है दैट इज QWERTY। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज नोन एज क्वालिटी कीबोर्ड,
राइट। नेविगेशन अप डाउन लेफ्ट राइट, ये जो नेविगेशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑप्शंस होते हैं राइट, दे आर आल्सो डिफरेंट। वॉइस इनपुट, नो डाउट स्मार्टफोन्स और टैबलेट में आप वॉइस इनपुट दे सकते हो, बट डेस्कटॉप में इतना पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर अलग से वो हेडफोन और माइक्रोफोन वो अटैच करना पड़ेगा। स्क्रीन की बात करें तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप और लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, लेकिन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की छोटी होती है, राइट। सो all the types of computers has their own advantages and disadvantages, right? But the thing is that हमारा किस हिसाब से यूज है, according to that हम उसको categorize कर सकते हैं, according to that we can decide कि हमें कौन से टाइप का कंप्यूटर चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी की जो कैटेगरी है उसके अंदर हमने कंप्लीट किया, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, राइट। लेकिन still there are three another types of computer, that is mini computer, mainframe computer and supercomputer, right? These three types of computers we will discuss in next lecture. So आज के lecture के लिए मेरे end से यहाँ पे complete होता है, right? We will meet in another lecture.